Hello, dear students. Welcome to your online class for subject English. In English, today's video will discuss chapter number 5, Robinson Crusoe. Okay, ये एक स्टोरी है. So let's start. Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. जो रॉबिन्सन था उसकी जो शिप थी, ठीक है, जहाज़ था जो उसका, वो डिस्ट्रॉय हो गया था, नष्ट हो गया था समुद्र से. He had been alone for many years and longed for company. वो काफ़ी समय से बहुत ही अकेला रह रहा था, ठीक है. One day he discovers a footprint on the sand. Let's find out what he did then. एक दिन क्या हुआ, उसने वहीं समुद्र के किनारे रेत पर एक फुटप्रिंट देखा, ठीक है. अब देखते हैं उसने उसके बाद क्या किया. One day when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. एक दिन जब मैं अपनी बोट लेके जा रहा था तो मैंने देखा क्या, फुटप्रिंट्स देखे एक आदमी के, और वो देख के मैं बहुत ही चौंक गया. I stood amazed. I listened. I looked around me. I could neither hear nor see anything. मैंने इधर उधर देखा, बैठ के ध्यान से सुना, पर मुझे ना तो कुछ दिखाई दिया ना कुछ सुनाई दिया. I went up higher to look down. मैं ऊपर गया फिर नीचे आया. I went up the shore and down the shore. मैं जो समुद्र का किनारा था उससे ऊपर गया नीचे गया. But it was no good. पर वहाँ कोई भी नहीं था. I could find no other footprint but that one. वहाँ मैंने और कोई भी फुटप्रिंट नहीं देखा, बस केवल वही था. I went to it again to see if there were any more footprints and to tell if it had been my imagination. फिर मैं उसके पास गया देखने के लिए कि क्या वो सच में कोई फुटप्रिंट है या फिर मेरी इमेजिनेशन है. But I was not mistaken, for there was exactly the print of a foot, toes, heel, every part of a foot. पर जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने देखा कि वो तो सच में कोई फुटप्रिंट है. उसमें अंगूठा भी था, हील थी, पैर का जो भी पार्ट होता है वो था. I could not imagine how it came there. मैं नहीं इमेजिन कर पा रहा था कि ये यहाँ कैसे आया. I stayed a long time thinking but became more and more confused. मैं बहुत देर तक सोचता रहा पर मैं फिर भी confused रहा. At last I returned home very frightened, looking behind me after every 2 or 3 steps, mistaking every bush and tree to be a man. फिर मैं वहाँ से अपने घर की तरफ दौड़ते हुए आया और मैं बहुत ही डर चुका था. मैं जब आ रहा था तो मैं एक दो कदम पर देख रहा था कि जो पेड़ है और वहाँ पे जो भी झाड़ियाँ हैं, क्या वहाँ पर कोई आदमी है. When I come to my cave, which I called my castle. फिर मैं जब अपनी केव में आया, जिसे मैं अपना कैसल यानी कि महल कहता हूँ, I ran inside it as if I was being chased. I do not remember whether I used the ladder or went in by the hole in the cave. फिर जब मैं वहाँ पे आया तो मुझे नहीं पता कि मैं वहाँ पर कैसे आया. मैं लैडर से चढ़ के आया, दौड़ते हुए आया, कैसे आया मुझे नहीं पता क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ था. I ran for cover faster than any animal could run. मैं इतनी तेज़ी से भाग रहा था जैसे कोई जानवर भी नहीं भागता है. I did not sleep that night. मैं उस रात को सोया भी नहीं. The more I thought about what I had seen, the more afraid I became. मैं जैसे सोच रहा था कि मैंने क्या देखा, मैं और ज़्यादा डर रहा था. I thought it could be one of the civics of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat. Luckily, I was not on shore at that time. But what if he had seen my boat? If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. फिर मैंने सोचा कि मैं बहुत ही लकी हूँ कि मैं उस समय उस किनारे पर नहीं था जब वो आदमी वहाँ पर आया होगा. अगर मैं वहाँ पे होता तो वो मेरी बोट को देख लेता और उसे पता लग जाता कि वहाँ पर कोई ना कोई ज़रूर है. फिर वो वहाँ पर आकर मुझे खा जाता. And so I lay fearful for many days and prayed for protection. कुछ दिनों तक मैं बस प्रे करता रहा कि
भगवान मेरी रक्षा करे। In doing so, I was much comforted and began going out to investigate. फिर जब कुछ समय बाद मैं कंफर्ट हो गया तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वहाँ जाके देखूं। But even now as I went forward, looked behind me frequently because I was still very frightened. पर जब मैं वहाँ गया तो फिर भी मैं अभी बहुत ज़्यादा डर चुका था। However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bored. I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. फिर क्या हुआ कि जब 2-3 दिन बीत गए तो मैं फिर दोबारा वहाँ पर गया और वहाँ पर जाके मैंने वो जो फुटप्रिंट्स थे उनको एग्जामाइन यानी कि उनको मेज़र किया। आई डिसाइडेड टू मेज़र इट विद माई ओन फुट मार्क। उन्हें मैंने अपने खुद के फुट मार्क यानी जो खुद के मेरे फुटप्रिंट थे उनके साथ मेज़र करने की कोशिश की। एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट आई रियलाइज दैट इट could not be my footprint because I had no come to this part of the beach since a long time. जब मैंने उस फुटप्रिंट के साथ अपने पैरों के फुटप्रिंट मैच किए तो मैंने देखा कि ये तो मेरे है ही नहीं, क्योंकि मैं तो बहुत समय से उस आइलैंड के उस वाले पार्ट पर आया ही नहीं था। सेकेंडली, एज आई प्लेस्ड माई फुट अलॉन्ग साइड दैट फुटप्रिंट इट सेम लार्जर देन माई ओन। फिर जब मैंने दूसरी साइड उस फुटप्रिंट के अपने पैरों के फुटप्रिंट को रखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो मेरे पैरों से बहुत ही बड़े हैं। माई फेयर रिटर्न, मैं दोबारा से बहुत ही डर गया। आई वेंट होम अगेन, मैं दोबारा अपने घर दौड़ते हुए गया। बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर, मुझे लगा वहाँ सच में कोई ना कोई है। द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड, जो आइलैंड था वो पहले के जैसे बिल्कुल नहीं रहा। ओके, सो ये थी स्टोरी रॉबिन्सन क्रूसो की, कैसे उसने फुटप्रिंट डिस्कवर किया। ओके, चलिए देखते हैं न्यू वर्ड्स कौन कौन से सीखे हमने। सबसे फर्स्ट है इसमें सेवेक्स, मीन्स आदिवासी, यानी कि जो जंगलों में रहते थे उन्हें सेवेक्स कहा जाता था। ठीक है। मेनलैंड, मेनलैंड मीन्स मुख्य भूमि। वंडर्ड, वंडर्ड मीन्स इधर उधर भटकना। बोल्डर, बोल्डर मीन्स साहसी यानी हिम्मत वाला। ओके, सो ये है इस चैप्टर के न्यू वर्ड्स। I hope you like it. So, okay, thank you. Have a great day.